السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب، شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بے روزگاروں کا ٹولہ قرار دے دیا، واضح کیا جتنے مرضی جلسے کریں، قانون توڑا تو سیدھا جیل جائیں گے۔ نواز شریف کی بیماری پر لیگی رہنما محمد زبیر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے نواز شریف کا موازنہ آیت اللہ خمینی سے کیا، کہاں یہ تو کہاں آیت اللہ خمینی۔ نواز شریف کی اتنی بیماریاں بتائیں کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں، وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر گیا تھا؟ آیت اللہ خمینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا۔ یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں، 6 بیماریاں ہو گئیں، 12 بیماریاں ہو گئیں۔ جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیریں مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی۔ آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی، وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا۔ اور عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستانی خفیہ ادارہ دنیا کی ٹاپ ایجنسی، پیسہ بنانا شروع کر دوں تو سب سے پہلے ISI کو پتہ چلے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خفیہ ادارے سے لڑائی تب شروع ہوتی ہے جب اس ادارے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواز شریف ISI کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے، مجھے پاک فوج سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری ISI کو پتہ چلے گا۔ کیوں پتہ چلے گا؟ کیونکہ ISI ایک دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے۔ یہ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم؟ ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کیوں نہیں پرابلم؟ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ ایک کے بعد ایک بحران، حکومت مکمل ناکام ہو چکی۔ بلاول بھٹو، صوبوں کو حقوق، عوام کو سہولیات نہیں مل رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اپنی زمین کے ایک ٹکڑے پر بھی غیر آئینی قبضہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کہا بلاول بھٹو نے۔ جزائر پر آرڈیننس جاری کرنے پر حکومت اپنی غلطی مانے، بلاول بھٹو نے ایسا کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج پر حکومت انتقامی کارروائیاں کرتی ہے۔ حکومت مخالف تحریک شروع ہونے جا رہی تھی، جمہوری جماعتیں مل کر حکومت کو ختم کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسد عمر فواد چودھری کی ملاقات، اپوزیشن کی تحریک، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ عثمان بزدار نے وفاقی وزراء کو اپوزیشن تحریک سے آگاہ کیا۔ دونوں وزراء وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسد عمر فواد چودھری نے ملاقات کی، اپوزیشن کی تحریک، سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ فرحان اعجاز سے تفصیلات جانیں گے۔ فرحان بتائیے گا۔ جی بالکل، آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزراء کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے والوں میں جو ہے فواد چودھری اور اسد عمر شامل تھے۔ ملاقات میں جو ہے اپوزیشن کی 16 اکتوبر کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک چلانے کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ عثمان بزدار نے وفاقی وزراء کو پنجاب میں اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ بھی کیا۔ ملاقات کرنے والے جو ہے وزراء وزیر اعظم کی تشکیل کردہ سیاسی کمیٹی کا جو وہ حصہ بھی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں جو ہے وہ اسد عمر، فواد چودھری جو ہے وہ شامل تھے اور تقریباً جو ہے وہ یہ 1 گھنٹے سے زائد ملاقات چلتی رہی، جس میں جو ہے مختلف تحریکوں پر اپوزیشن کا جو رد عمل اس پر جو ہے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ فرحان اعجاز۔
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग में जमहूरियत का प्रचार धोखा है। सीनियर लोग हाथ बांध कर आपका इंतजार करते हैं। ट्विटर पर अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी का कहना है कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पार्टी एक शख्स के नाम पर खड़ी की जाए। उसका मतलब ये है कि पार्टी का नजरिया सिर्फ एक शख्स का जाती मफाद है। वर्कर्स इस शख्स के गुलामों के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। ऐसी पार्टी से जमहूरियत का प्रचार मुनाफिकत है। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमे की तफ्तीश के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का लाहे अमल CCPO तय करेंगे। मुकदमे में ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमे की तफ्तीश के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का लाहे अमल CCPO तय करेंगे। मुकदमे में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बगावत मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये कहा राजा बिशारत ने। ये थानों में जाएं और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। वजीर कानून पंजाब ने कहा अपोजिशन का इत्तेहाद कायम नहीं रहेगा। माजी में भी इत्तेहाद बने, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ घेरा तंग। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। दीगर 7 अफराद के नाम भी ECL में शामिल। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में शामिल है। कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने जिलाबंदी के दौरान बरतानिया में 4 कीमती फ्लैट्स कैसे हासिल किए, नैब तमाम तफसीलात सामने ले आया। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बरतानिया में फ्लैट्स 13,31,000 पाउंड में खरीदे। नकवी रिपोर्ट करेंगे। शरीफ के लंदन में खरीदे गए 4 फ्लैट्स के पैसे कहां से आए, नैब ने तफसीलात जारी कर दी। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने फ्लैट्स खरीदने के लिए रकम एक कारोबारी शख्सियत बार्कले बैंक बरतानिया, भतीजी आसमा डार समेत दीगर से बतौर कर्ज हासिल की। अपर बार्कले लंदन में वाक़ फ्लैट 2005 में 2,35,000 पाउंड में खरीदा गया। इस फ्लैट के लिए 75,000 पाउंड कारोबारी शख्सियत से कर्ज और 1,60,000 बार्कले बैंक से बतौर कर्ज हासिल किए। शहबाज शरीफ ने दूसरा फ्लैट 2007 में लंदन में 1,60,000 में खरीदा। इस फ्लैट के लिए 16,075 पाउंड कारोबारी शख्सियत से कर्ज जबकि 1,43,000 पाउंड बार्कले बैंक लंदन से लिया गया। तीसरा फ्लैट भी 2007 में 6,50,000 पाउंड में खरीदा गया। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 2009 में लंदन में चौथा फ्लैट 2,86,007 पाउंड में खरीदा। इस फ्लैट के लिए 2,30,607 पाउंड कारोबारी शख्सियत जबकि 55,400 पाउंड दीगर करीबी रुफका से हासिल किए गए। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के खानदान और दीगर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। लाहौर की एहतिसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के असासजात मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को बहस का आखिरी मौका दे दिया। एहतिसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब हुक्काम ने हक़ाइक़ के बरक्स मेरी फैमिली के असासजात मुंजमद किए। इंक्वायरी स्टेज पर असासजात को मुंजमद करना कानून के बरक्स है। इस्तदा की गई कि अदालत असासजात मुंजमद करने के हुक्म को कालअदम करार दे। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को बहस का आखिरी मौका देते हुए समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर की जिला कचहरी में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर केस की समाअत हुई। मुलजिम की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 20 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज नफीस ने कैप्टन सफदर के खिलाफ समाअत की। कैप्टन सफदर बीमारी के बायस अदालत में पेश न हुए। मुलजिम की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दी गई। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद सईद का रद्द अमल। सिंध की आवाम को वफाक ने मदद की, ऐसा कहा गया। मुराद सईद की जानिब से सिंध हुकूमत को अपने सूबे की आवाम की फिक्र ही नहीं थी। उनको 1100 अरब का पैकेज जाली अकाउंट में ना जाने की परेशानी पड़ी थी, ये कहा गया मुराद सईद की जानिब से। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर रद्द अमल दिया मुराद सईद ने। रद्द अमल में कहा कि सिंध की आवाम की वफाक ने मदद की है, सिंध हुकूमत को अपने सूबे की तो फिक्र तक नहीं, उनको 1100 अरब का पैकेज जाली अकाउंट में ना जाने की परेशानी है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
तालीमी इदारों में ट्रेस। इस्लामाबाद के मजीद 5 तालीमी इदारों में कोरोना केस रिपोर्ट हुए। मुतासरा तालीमी इदारों को सील करने का मरासला जारी कर दिया। इस्लामाबाद के 2 मॉडल स्कूल भी मुतासर हुए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद कासमी से। जी सज्जाद। आज भी मुल्क भर में शादी हाल कोरोना के निशाने पर है। एमसीओसी की जानब से खतरे की घंटी बजा दी गई और कहा गया है शादी हाल कोरोना वायरस में हाई रिस्क है और 15 सितंबर से तक कोरोना वायरस में कमी देखकर ये शादी हाल खोले गए थे, लेकिन अब दोबारा से इनके लिए सख्त एसओपी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। शादी हाल में एसओपी पर सख्ती से अमल दरामा जो है वो करवाना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी, जिसमें शादी हाल में इंडोर 3 को आउटडोर 5 को शादी क्रिकेट की इजाजत होगी, जबकि शादी हाल में इवेंट का दरमियान 2 घंटे जो मैक्सिमम हो सकेगा। एसओपी की खिलाफ वर्जी करने पर शादी हाल भारी जुर्माने के साथ मखसूस टाइम के लिए बंद कर दिए जाएंगे, ये कहना है एमसीओसी का। और उसके साथ जो दीगर भी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है उनसे भी मुशर्रत जारी है और मुमकिन तौर पर मजीद सख्त जो ऐसी चीजें हैं वो भी वाज़ेह किए जाना का इम्कान है। सही, शुक्रिया सज्जाद काज़मी। टिक टॉक के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। पीटीए ने टिक टॉक ऐप पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर लगाई गई। पाबंदी अवामी शिकायत के बाद लगाई गई। तर्जुमान के मुताबिक टिक टॉक इंतजामिया को जवाब जमा करवाने की मोहलत भी दी गई है। चारसद्दा में नन्ही जैनब से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि चारसद्दा में नन्ही जैनब से ज्यादती कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नन्ही जैनब से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में जैनब के रिश्तेदार भी शामिल हैं, जिनसे तफ्तीश जारी है। टीपीओ चारसद्दा मोहम्मद शुएब के मुताबिक मर्दान, नौशहरा और सवाबी पुलिस के माहिर पुलिस अफसरान को भी इंक्वायरी टीम में शामिल किया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG KPK और दीगर हुकाम को मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। वजीर आला महमूद खान का कहना है कि वाक़े में मुलविस अफराद को इबरत का निशाना बनाया जाएगा और मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा। कराची पुलिस ने कत्ल केस का 3 साल मफरूर मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम उमैर 3 साल से मफरूर था। मुलजिम ने सुल्तानाबाद में नौजवान को कत्ल किया था। मंगू पीर पुलिस ने मुलजिम को दौरान डकैती गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ कई थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। कराची पुलिस ने कत्ल केस का 3 साल पुराना मफरूर मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम उमैर 3 साल से मफरूर था। मुलजिम ने सुल्तानाबाद में नौजवान को कत्ल किया था। मंगू पीर पुलिस ने मुलजिम को दौरान डकैती गिरफ्तार किया था और मुलजिम के खिलाफ कई थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, SSP मुन्नती सैयद मोहम्मद अदनान की कार्रवाई जो 3 साल जो मखसूस कत्ल का मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उमैर जो है राज्य के खिलाफ जो थाना मुन्नती में 3 साल कबल जो मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम उमैर ने 3 साल कबल सुल्तानाबाद सोसाइटी इस्तेमाल गाँव रोड पर जो फायरिंग करके 17 साल नौजवान दानिश को खत्म कर दिया गया था। और मंगोपीर पुलिस ने जो मुलजिम उमैर के गुज़िश्ता रोज जो दौरान डकैती गिरफ्तार किया था। मुलजिम उमैर और जाजी के खिलाफ जो मुख्तलिफ कानूनी मुकदमा दर्ज है। जी शुक्रिया शाहिद एजाज। कोयटा में कस्टम्स का FC के हमरा क्रैकडाउन। 15 करोड़ रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। सामान में कपड़ा, अद्वियात, चाय, छालिया, कॉस्मेटिक शामिल हैं। सामान को बसेस के जरिए अंदरूने मुल्क स्मगल किया जाना था। कार्रवाई असल के मकाम पर की गई है। स्मगल्स इंसानी जिंदगियों से खेलने से बाज न आए। बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर गरीब खानदानों को उजाड़ने लगे। हाफिजाबाद के 4 नौजवान भी बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए यूरोप जाने की कोशिश में जान गंवा बैठे। गुर्बत के खात्मे और खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब, ज़ईफ होते वालिदैन का सहारा बनने की आस, सब ख्वाब मट्टी में मिल गए। सब कुछ अधूरा रह गया। बेहतर मुस्तकबिल के मतलाशियों की ताबूतों में वापसी। पंजाब के जिला हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान जो आंखों में बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए घरों से निकले थे, गैर कानूनी तौर पर यूनान जाते हुए तुर्की के बॉर्डर पर हादसे में जाबहक हो गए। जाबहक 4 नौजवानों में से 2 की लाशों को वापस पाकिस्तान लाया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहकीन का कहना है कि इनके खानदान के बेशतर लोग मुफलिस और गरीब हैं और जब इनके इलाके में इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरी के सुनहरे ख्वाब दिखाए तो घर वालों ने इन्हें बैरून मुल्क भेजने पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर डाली। थोड़ा जी इन्फॉर्मेशन मिली है एजेंट की गफलत है, चाहे इस अगे पैसे देने सी या पैसे मामला था, इस वजह तो साडे बंदियां नूं तशद्दुद होया जिंदी वजह तो हो गया।
ان سے डेड बॉडियां वापस लिया के तक मिल नहीं रहे 5 ले गए टोटल 4 बंदे साडे पिंडां दे सी उन्हें च 2 नहीं मिल रहे 2 वापस आ गए पंजवां मुंडा एक प्रवासी उनके पिंड दे सी वो बंदा ठीक ठाक वापस आ रहा ये 5 लड़कियां नूं झांसा दे के इत्थे कुछ पैसे इत्थे तय कीते इत्थे लैन उन्हां कोल बाकी पैसे क्या मैं यूरोप जाके इन्हां कोल जिहड़े तुहाडे घरों लवांगा इन्हें लै उस तो बाद 24 तरीक को बार्डर पास कराया 24 तरीक को मुझे रबता कोई नहीं पहले कहता सी उत्थे अरेस्ट हो गए थोड़े वापस आ रहे हैं फिर कहता सी कि ये क्वारंटीना की वजह 15 दिन क्वारंटीन के बाद वापस आ रहे हैं फिर इसने 12 तरीक को कहा कि बंदे थोड़े 2 फौत गायब हो गया नस गया तो 2 मिल नहीं रहे 5वां बंदा आ रहा है इस तो बाद वो असी कोशिश करके डेड बॉडियां 2 दी लै आंदियां ने नसीर वाल दोस्त मोहम्मद दी आमर वाल यूसुफ दी वो डेड बॉडियां लेके आया उनका कहना था कि चारों नौजवान एजेंट की गफलत के बायस जाँ बहक हुए। लवाहकीन ने मुतालबा किया कि एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को इंसानी स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में लाई जाने वाली आजरबाईजान की शहरी लड़की को 7 रोज में वापस भेजने के लिए NOC जारी करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को NCOC में जारी करने और इंतजाम मुकम्मल करके लड़की को मुतालिका सिफारतखाने के हवाले करने की हिदायत की। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सुनामी परेशानी ही परेशानी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड महंगाई, एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.24% बढ़ चुकी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, महंगाई का जो सुनामी है वो थम नहीं सका और अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 1.24% जो है वो महंगाई की शरह में एक हफ्ते के दौरान अक्टूबर का पहला हफ्ता है और उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की आदाद शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 11.24% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इसी के साथ साथ जो गरीब तबका है जिसकी आमदन जो है वो 17,000 माहाना तक है उसके लिए जो महंगाई की शरह है वो 14% से ज्यादा जो है वो हो चुकी है। बेशतर अशिया जरूरियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा कीमत जो है वो टमाटरों की बढ़ी है। एक हफ्ते के दौरान 18 रुपए फी किलो टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आलू की कीमत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया और साथ में चिकन की कीमत में भी 12 रुपए से लेकर 16 रुपए तक फी किलो जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सही, शुक्रिया कामरान चौधरी। सोने की कीमत में 1500 रुपए इजाफा, सोना 1,13,750 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,329 रुपए इजाफा, 10 ग्राम सोने की कीमत 97,522 रुपए हो गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी का इजलास, सड़कों की तामीर, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू, कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे पर इत्तफाक, नालों की सफाई के बाद उनके बंदों पर रोड की तामीर करने का फैसला हुआ। थड्डो डैम पर स्पिलवे बनाकर पानी जखीरा करने का फैसला हो गया। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी को मजीद फाल बनाने का फैसला हो गया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाने पर भी गौर किया जा रहा है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी का इजलास, सड़कों की तामीर, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू, कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे पर इत्तेफाक, नालों की सफाई के बाद उनके बंदों पर रोड की तामीर करने का फैसला। थड्डो डैम पर स्पिलवे बनाकर पानी जखीरा करने का फैसला। सिंध कच्ची आबादीज अथॉरिटी को मजीद फाल बनाने का फैसला। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर गौर। अब्दुल कदीर राना से तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कदीर राना बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में वजीर आला सिंध से वजारत प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उसका दूसरा इजलास हुआ है जिसमें कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध सूबाई इंफ्रा, GOC कराची, चेयरमैन PNB मोहम्मद वसीम और दीगर जो मुतालिका हुकाम है इस कमेटी के हवाले से वो लोग इसके अंदर शरीक थे। इस इजलास के अंदर 6 जो सड़कें हैं बल्कि उसमें कराची की तामीर के हवाले से गौर किया गया। इसके अलावा ग्रीन लाइन बस मनसूबा है उस हवाले से भी बाद में किया गया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो शहर का है इस पर भी जो है इजलास के अंदर गौर किया गया और फैसला किया गया है कराची का कचरा है इससे बिजली पैदा की जाए। इस बात से इत्तेफाक किया गया इस कमेटी के इजलास के अंदर और शहर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है वो सिर्फ इस अच्छे काम कर रहे हैं और मजीद 9 ऐसे स्टेशन हैं वो बनाने का जो है कमेटी के इजलास में फैसला कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
में मौसम का पारा हाई होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में शदीद गर्मी की लहर अगले 5 रोज तक जारी रह सकती है। गर्मी में इजाफा समंदरी हवाएं मुतासिर होने के सबब होगा। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड और इतवार को 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। और कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां लोड शेडिंग की जा रही है उनमें अजीजाबाद, गुलमार, गुलबहार, लाइन्स एरिया, जमशेदोर और सदर के इलाके शामिल हैं, जबकि नाजमाबाद, मलीर, शाह फैसल और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है, जिससे शहरी जहनी अजियत में मुब्तला हो गए। गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर और लोड शेडिंग से ये बहुत फर्क पड़ता है। बेचारे सुबह काम पे जाते हैं, रात में आते हैं, लाइटें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि घर वाले परेशान रहते हैं, मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। लोड शेडिंग कभी ओवरलोड आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, दिन भर लाइटें होती नहीं हैं। ये बेचारे परेशान, आवाम परेशान। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए यार कि इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए। लोड शेडिंग दिन में होती है, 5-6 बार हो जाती है, 2-2 घंटे की लाइट चली जाती है। काम हम सब उसके जो ऊपर होता है वो काम बंद हो जाता है, तो रोजगार बिल्कुल नहीं होता हमारा। इनको चाहिए कि लोड शेडिंग कम करें। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई घंटे की लोड शेडिंग की वजह से न दिन को सुकून है न रात को सो पाते हैं। लोड शेडिंग ने तो रोजाना का एक तमाशा बनाया हुआ है। यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग है कि क्या बताएं। सुबह ड्यूटी पे जाओ, रात को लाइट नहीं है, कभी फ्रिज उड़ गया, कभी जनरेटर उड़ गया, कभी क्या इस तरीके की बातें। बेटा परेशानी बहुत है। 1 घंटा लाइट देते हैं तो 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा लाइट गए हुए। हमारा इलाका तो और बेकार है, मुशर्रफ कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरियों ने शिकवा किया है कि एक तो 10 से 12 घंटे बिजली नहीं होती, ऊपर से बिजली के ओवर बिल भी हमारे हाथों में थमा दिए जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिना किसी तात्तुल के बिजली फराम हो सके। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अब नया बिजली कनेक्शन लगाना महाल हो गया। लेस्को को 3 फेज बाई डायरेक्शनल मीटर्स और कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स की शदीद किल्लत का सामना है। बिजली सारिफीन कनेक्शन के लिए ख्वार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी। लेस्को के सारिफीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। जराये के मुताबिक लेस्को रीजनल स्टोर में 10, 15, 25 और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर्स, 11 केवी, 15 केवी की इंसुलेटेड केबल्स, 3 फेज TOU और नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बाई डायरेक्शनल मीटर्स की शदीद किल्लत है। ये किल्लत लेस्को का वक्त पर कंट्रैक्टर से सामान का मुआहदा न होने के बायस हुई है। मीटर्स की किल्लत के बायस सैकड़ों खराब मीटर्स भी तब्दील न हो सके, जबकि लेस्को कसूर, ओकाड़ा, ननकाना, शेखुपुरा, 3rd और 1st सर्कल में सैकड़ों ट्यूबल्स के कनेक्शंस इल्तवा का शिकार हैं। किसानों की जानिब से लाखों के डिमांड्स नोटिस भी जमा हैं। जराये के मुताबिक लेस्को के पास 3 माह से छोटे ट्रांसफार्मर्स मुयस्सर नहीं हैं। कनेक्शन के लिए आए सारिफीन और किसानों को लेस्को इंतजामिया मार्केट से खुद ट्रांसफार्मर खरीदने का कहने लगी। सारिफीन कहते हैं कि लेस्को चीफ को इस अहम मसले का नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब लेस्को इंतजामिया का कहना है कि मटेरियल की खरीदारी की जा रही है, जल्द ही तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत में 15 रोजा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट और सेक्टर्स में सफाई जारी है। शोबा सैनिटेशन के डायरेक्टर कहते हैं वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत में 15 रोजा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट्स की सफाई के साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स में सफाई का अमल जारी है। डायरेक्टर शोबा सैनिटेशन सरदार खान जिमरी का कहना है सफाई के निजाम को मजीद बेहतर बनाएंगे। हर महकमे को CMSCD ने सख्त हदायत जारी कर दी है। 15 रोजा के अंदर हर गली की स्ट्रीट आयन होगी, मेजर रोड वगैरह कारपेटिंग शुरू हो गई है। एनवायरमेंट वाले दिन रात हर ग्रीन बेल्ट में हर रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, खूबसूरत होना चाहिए। इस्लामाबाद वैसे ही बहुत खूबसूरत शहर है और उसमें जब थोड़ी सी गंदगी होती है तो वो बहुत बुरा लगता है। वफाकी दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद के दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में इसका शुमार होता है।
تو اس چیز کو جاری رہنا چاہیے. ہر آدمی کو چاہیے جو یہاں تک صفائی کے معاملے میں جو اپنا کوڑا یا جو ہے نا وہ اپنے کوشش کرے کہ وہ کوڑے دان میں ڈالے. سی ڈی اے کی طرف سے مختلف سیکٹرز اور گرین بیلٹس پر صفائی کا سلسلہ جاری ہے. ڈائریکٹر شعبہ سینیٹیشن کا کہنا تھا کہ صفائی کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. کیمرہ مین حسین بلغاری کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کے خلاف اپیلوں پر حکم نامہ جاری کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. تفصیلات اسلم کھوکر سے جانیں گے. اسلم بتائیے گا. جی بالکل، العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف اپیلوں پر جو ہے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور 7 اکتوبر کی سماعت کا یہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو 24 نومبر پیشی کے لیے آخری موقع دیا. یہ حکم نامے میں بتایا گیا اور کہا گیا ہے کہ اشتہار کے ذریعے نواز شریف کو آگاہ کیا جائے کہ 24 نومبر کو پیش ہوں. انگریزی اور اردو اخبارات میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار بھی شائع کیا جائے. نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ہائی کمیشن کے ذریعے برطانیہ بھیجوایا جائے. ممکن نہیں کہ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت اپیل سے لا علم ہوں، یہ عدالت کا کہنا ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر ان کے وکیل خواجہ حارث دوبارہ بھی پیش نہیں ہوئے. بہت شکریہ اسلم کھوکر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کراچی میں اے ایس ایف سٹی اور اسٹار مارکیٹنگ نے وزیر اعظم کی کلین اینڈ گرین مہم پاکستان کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. سیکرٹری ایویشن حسن ناصر جامی کہتے ہیں مہم کے تحت اے ایس ایف سٹی میں 1 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے. وزیر اعظم کی کلین گرین مہم کے تحت موچوے M9 پر واقع اے ایس ایف سٹی کراچی میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح سیکرٹری ایویشن حسن ناصر جامی اور ڈی جی اے ایس ایف میجر جنرل ظفر الحق نے کیا. سیکرٹری ایویشن کا کہنا تھا شجرکاری مہم میں 1 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، جبکہ وزیر اعظم کی اس مہم کے تحت وزارت ہوا بازی کو 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ملا ہے. انہوں نے کہا کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کو ورلڈ اکنامک فورم نے بھی سراہا اور پاکستان کو چیمپئن آف نیچر کا خطاب دیا، جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس موقع پر ڈی جی اے ایس ایف میجر جنرل ظفر الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سرسبز بنانے میں اے ایس ایف اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. جمہوری ملک کا راگ الاپنے والا بھارت سب سے بڑا دہشت گرد نکلا. امریکی جریدے نے داعش اور بھارت کے درمیان روابط دنیا کے سامنے رکھ دیے. داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. فارن پالیسی بغل میں چھری منہ سے رام رام. امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا پر آشکار کر دیا. خود کو سیکولر اسٹیٹ قرار دینے والا عالمی دہشت گردی میں سر فہرست قرار. امریکی جریدے فارن پالیسی نے تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ بھارت کی انتہا پسند پالیسی تباہ کن خطرہ ہے. بھارت دہشت گردی کا نیا چہرہ ہے. امریکی جریدے نے داعش اور بھارتی روابط دنیا کے سامنے رکھ دیے. داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. امریکی جریدہ لکھتا ہے کہ بھارتی دہشت گردی کی سٹوری تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی. بھارت کی انتہا پسند پالیسی دنیا کے لیے تباہ کن خطرہ ہے. بھارتی دہشت گردی کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کے 2 رس اثرات ہوں گے. داعش کے افغانستان میں جیل پر حملے نے ابھرتے خطرات کو بڑھاوا دیا. مختلف ممالک میں حملوں کی نئی لہر میں بھارتی سرپرستی نیا موڑ لے رہی ہے. بات کریں اسپورٹس کی دنیا سے. اٹلی میں سائیکل ریس کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں. چھٹے مرحلے میں فرانسیسی سائیکل سوار نے ریس کی دوسری فتح اپنے نام کی. اطالوی سائیکل ریس کے مقابلوں میں دنیا بھر کے کئی نامور کھلاڑی آمنے سامنے آئے. چھٹے مرحلے میں بھی دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے. تاہم حکومتی ایڈوائزری کے بعد شائقین سے SOPs پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے. 188 کلومیٹر طویل ریس میں فرانسیسی سائیکل سوار نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.